Good morning, all. So, okay, last classes we have already discussed about the chopper control. Chopper control of separately excited motors, various types of chopper controls, motoring and regenerative braking in quadrant one, first quadrant, second quadrant, like that, two quadrant chopper. Okay. So, and also the one numerical problems in last classes we have discussed. Now, today we will discuss some numerical problems related to chopper. That is the separately excited DC motor or series motor. So today we will try to solve some numerical problems related to the chopper drives. So okay. So now I am giving one question. So try to solve this question, all of you. The question is here. See here the question. And those who are not attended the last classes, the chopper control, and I think three classes for the chopper: basic chopper, principal operation, different types of chopper, and also for the DC separately excited motor chopper. So duty interval, duty control, their waveforms, all things are clearly discussed. Okay, in the last classes. So all videos are available in YouTube. So watch that video. So now the today class, that is the numerical questions. One question is here. See, write down the question. A 220 volt, 70 ampere DC series motor. Write down all of you the question. Try to solve. Has combined resistance, and field of 0.12 ohm, running on no load with the field winding connected to a separate source. It gave following. Write down the question. Okay, following magnetization characteristics at 600 rpm. 600 rpm. So one of the data is given here. See, this is the field current. In ampere. Terminal voltage. So data is here. For 10 ampere, voltage is 64. 20 ampere, voltage is 118 volt. 30 ampere, voltage is 150 volt. 40 ampere, voltage is 170 volt. 50 ampere, 184. 60, 194. 70, 202. And 80, 210. So motor is controlled by a chopper with a source voltage is equal to 220 volt. Calculate. All of you try to solve. First write and try to solve. Okay. Calculate motor speed for a duty ratio
of 0.6 duty ratio, okay, and motor current of 60 ampere. First question. Second one, torque for a speed of 400 rpm and duty ratio of 0.65. So first read these questions carefully and solve step by step. Okay. So try to solve. A 220 volt 70 ampere DC series motor has combined resistance and field of 0.12 ohm. Okay. Running on no load with the field winding connected to a separate source. It gave following magnetization characteristics at 600 rpm. So this is the given data. Motor is controlled by a chopper with the source voltage 220 volt. Calculate the first one, that is the motor speed. See here the question. Motor speed for a duty ratio of 0.6. Duty ratio, you know that this is what? Dale. You know that this one Dale. Motor current of 60 ampere. Okay. Second one, torque. So, okay. So find out how to calculate. How to calculate. All of you first write this question. So you know that here, you know that the last classes, the relations for the terminal voltage, source voltage with the duty ratio. So I think all of you know this relation. Suppose here V1, okay. Just consider VA1 for first case. So del V. So you know that del is given duty ratio 0.6. So 0.6 and the voltage is what? 220. Okay. So here the terminal voltage is 132 volt. Okay. Then now calculate E1. So for the motor, you know the formula is VA1. Now suppose the current is IA1 or resistance will be RA. So here the I VA1 that is 132 and minus that is the IA1, the current. What is the current? 60 ampere. See here the question, 60 ampere current. So here 60. Now what is the RA here? So RA is 0.12. See the question, 0.12. So 0.1 and 2. So okay. So now calculate this one, 132 minus 60, 0.12. Then by simply calculate this one, so this is 124.8 volt. So this is the E1. Okay, clear? See the question, motor speed for a duty ratio is a motor speed. We have to find out the motor speed. So I think all of you know the formula, that is N1 by N2, E1 by E2, or N2 by N1, E2 by 1, no problem. So find out the motor speed means which one? 60 ampere to 20 volt. Okay. So now the magnetization characteristics. See, running on no load with the field winding connected to a separate source, following magnetization characteristics at 600 rpm. At 600 rpm. Okay, 600 rpm. So find out. So find out 600 rpm. So I think this is very simple. 600 rpm. So see here, for 60 ampere, see here for 60 ampere, because question 1 is 60 ampere, na? So 60 ampere, the voltage is what? See here, 194. From this table, from this reading, the voltage is 194. Then just find out.
So from this magnetization characteristics, simply from magnetization characteristics, IA is equal to 60 ampere, then E is equal to 194 volt. Okay. So what is the motor speed? Question is that now what is the motor speed for a duty 0.3 motor and 60 ampere? So find out motor speed. Very simple. The relation, you know that relation. So motor speed. So suppose this is N1. So you know the relation. E1 by suppose the first one is E. So and what and E1 by N1 by N2. So N2 is what? 60. Means N is 60. 60, sorry, 600. So E1 is what? E1 is why this one? 124.8. And what is the E here? What is the E? So E is C in the characteristics table. 194. Okay. Now speed is 600. Now just calculate this one. We just get this value. So N1 will be, now calculate this one, 124.8 into 600 divided by 194. So this will be 386 RPM. So I think that all of you got this. The question is like, just tell me. सर बोल रहे हैं सर वो टर्मिनल वोल्टेज है ना सर? हाँ, कौन बोला? बोलो। 194। ये जो 194। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का जो EMF जो होगा वो उसके बराबर ही होगा 60 एम्पियर में। 60 एम्पियर में, हाँ। तो सर उसमें जो उसमें लिए हैं सर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो सर उसमें E जो ले रहे हैं वो EMF ना होगा सर, मतलब वहाँ रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज ड्रॉप घटने के बाद जो जाएगा, मतलब आर्मेचर के अक्रॉस जो उसमें वहां पर रहेगा वही ना होगा? नहीं नहीं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग यहाँ पर कंसिडर किए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो चॉपर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट किए, E1 जो 120, एक मिनट, 132 वोल्ट हो गया यहाँ पर, 124.8। और जो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग शो कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑन नो लोड, ऑन नो लोड। नहीं, यहाँ पर ईवान जो लिए हैं सर, ईवान जो लिए हैं उसमें तो 132 टर्मिनल में आया सर, चॉपर के बाद 132 टर्मिनल में आया, उसके बाद ड्रॉप होने के बाद सर 124.8 आया। तो सर वो तो मतलब जो मतलब आर्मेचर के अक्रॉस वहां पर जो रहता है वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद वो वाला आया, और अगर हम उसमें करेंगे तो वो तो टर्मिनल वोल्टेज आप 194 दिखा रहे हैं, तो वो ड्रॉप होने के बाद नहीं, यहाँ पर देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जो ले रहे हैं ना, वो वहां पर क्या लिखा हुआ, रनिंग विथ नो लोड, running with no load with the field winding connected to separate source, it gives the following magnetic characteristics 600 rpm. नो लोड का मतलब क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। हाँ सर, ओके सर। तो उस समय हम लोग का जो टर्मिनल वोल्टेज और जो बैक ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये रनिंग विथ नो लोड इस वर्ड को पढ़ना होगा ना, रनिंग विथ नो लोड, क्लियर है? So now this N1 is equal to this 386 rpm. Okay. So again, now the second question, that is the torque for a speed of 400 rpm. See the question, second question, 400 rpm and duty ratio is 0.65. Okay. So now calculate the next one. Try to calculate the next one, torque. So try to solve this next one. Okay. So again, next one, del is given, duty ratio is given. Okay. And also 220 volt del V is equal to, formula is what, E plus IA RA. Okay, this, okay, see here, next क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग एज्यूम करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को देख करके, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल हियर, सिंपल,
what is the formula? V is equal to E plus IARA. So here V means, here consider del V is equal to E plus IARA. Okay. So next question is given 0. What is the value? 0.65. DT ratio is what? 0.65. Okay. Now consider the voltage is 220 and E is not given for this case. Plus again R is 0.12 and now this is IA. So solve this one. 0.12 IA is equal to 143 minus E. But here two unknowns. So equation is only one. Okay. So here we just hit and means trial and error from their magnetization table. See the table. See the table. In table IA is equal to 60, 70. Torque for a speed of 400 RPM and duty ratio of 0.65. तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग को एक वैल्यू को पुट करना है, मतलब अपने मन से यहाँ पर जो है कि IA को वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, 60 भी पुट करके देखो, 70 भी पुट करके देखो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पुट करके देखेंगे जो कर्व है, जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां से, और फिर हम लोग E का वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, मीन्स सिंपली ट्रायल एंड एरर, ठीक है। जैसे कि मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ कि IA इज इक्वल टू 70 एम्पियर हम लोग पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा E का वैल्यू को 70 एम्पियर, ठीक है। तो 70 एम्पियर का वैल्यू पुट करते देखो तो कितना आ रहा है, I इज इक्वल 70, E का वैल्यू क्या आ रहा है, सो E इज इक्वल टू 143 माइनस 0.12 इंटू 70, ये वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करो। E इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो इसको, 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, 0.12 134.6, this is 134.6 volt। अब इस IA का वैल्यू को यदि हम लोग पुट कर देते हैं और E का वैल्यू को पुट कर देते हैं तो देखो 0 हो जाएगा। IA का वैल्यू को 70 पुट कर देते हैं और E का वैल्यू को यदि हम लोग ये पुट कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं ना एक्स एंड वाई, मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं ना, कि ठीक है हम लोगों ने एक्स का वैल्यू को ये पुट करके चेक किया हूँ, तो ये एक्स का वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो जो वाई का वैल्यू को जो भी मेरा फाइनल हुआ दोनों को इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनल वैल्यू हम लोग का जो भी बैलेंस आ गया, बैलेंस हो गया, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को, तो सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज द आई, सिंपली दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि आई इज इक्वल टू 70 एम्पियर, सही है, करेक्ट, इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आई इज इक्वल टू 70 एम्पियर। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लिए, मतलब ट्रायल करके हम लोग चेक किया मैंने, ठीक है। तो 60-70 देख के भी कर सकते थे, तो हम लोग जो सॉल्यूशन होगा वैसे को हम लोग मानेंगे वो करेक्ट है। So now the torque, what is the expression for torque? You know the torque. What is the formula of torque? Formula of torque T omega m is equal to EIA. Mechanical power, electrical shaft power, ये होता है ना, तो T is equal to क्या हो जाएगा, EIA by omega m. Okay. So question is that 400 RPM E. So E कितना हम लोग का आ गया है 134.6 और IA कितना है 70 एंड ओमेगा एम स्पीड कितना है, क्वेश्चन 400, so 400 this is RPM, so how to convert this radian per second, how to convert to radian, so radian के लिए pi by 30 means 2 pi by 60, so okay now calculate this one, so calculate this one, 2 pi 2, calculate this one, T is equal to torque, what is the torque, calculate this one, the torque will be 225 Newton meter। तो क्वेश्चन को देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चंस है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस को एनालिसिस करना होगा थोड़ा सा, क्या है नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें टफ कुछ है नहीं, बेसिक फॉर्मूला हम लोग जैसे कि जितना भी सिमिलर टाइप का हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं शुरू से,
चाहे वो रेक्टिफायर कंट्रोल हो, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हो, जो भी शुरू से बना रहे हैं, सब में देख रहे हैं कि एक ही टाइप का मेथड इक्वेशंस यूज हो रहा है। ये बहुत ही कॉमन है, N2 by N1 E2 by 1, ये जो एक्सप्रेशंस भी मोटर्स के लिए भी, ईएमएफ का इक्वेशन, बैक ईएमएफ का इक्वेशन, और करंट का मीनिंग क्या होता है, फुल लोड, हाफ लोड, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद बाकी जो हम लोग चॉपर यूज कर रहे हैं, तो चॉपर में हम लोग का ड्यूटी रेशियो है, और जब हम लोग बात करते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का, तो वहां पर हम लोग का फायरिंग एंगल कंट्रोल है। तो कुछ बेसिक चीज को समझना है, और बेसिक चीज को समझने से ही ये सारा क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर उसमें आप 70 लिए हैं, तो मतलब कैसे ले रहे हैं सर, वो नहीं समझ में आ रहा है नहीं उसमें। नहीं नहीं अगर नहीं, आप एक्चुअली नहीं, मेरे पास, तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी करते हैं कि 70, है ना। अब इसमें इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको जीरो करते हैं, मान लो वाई का वैल्यू को 70 पुट कर चेक करते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, मतलब हिट एंड ट्रायल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में। मेरे पास एक ही चीज है, तो हम क्या करेंगे, अगर पुट करके देखेंगे बैलेंस करके मेरा किसमें बैलेंस हो रहा है। मेरे पास एक ही इक्वेशन है, सपोज दैट तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है, तुम्हारे पास सिर्फ ये इक्वेशन है ना। अब यहाँ पर आई ए ई, तो तुम अपने इसमें सोचो कि आई ए के वैल्यू, मेरे पास तो टेबल दिया गया है ना, एक टेबल है मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस 60 करके जो। एम्पियर अगर डाल देंगे सर, 60 एम्पियर, तो हाँ। उस हिसाब से जो आएगा 60 एम्पियर, उस हिसाब से ईएमएफ आएगा, तो वो वाला हम्म ईएमएफ अगर उसमें डालेंगे तो वो तो जीरो करेगा ही सर, कुछ भी डालेंगे हम्म तो। 60 एम्पेयर पे चेक करो कितना हो रहा है। उसमें भी आएगा सर, जो भी आएगा, जो वैल्यू आएगा ना उसमें डालेंगे तो उसको जीरो कर हाँ तो देगा, ठीक है, क्योंकि तुम, हाँ तो ठीक है, तो सिक्स, तो देखो तुम यदि 60 एम्पियर में भी कर रहे हो, तो उसका भी वैल्यू पुट करोगे तो देखो टॉर्क भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो देखो 400 आरपीएम, टॉर्क फॉर ए स्पीड ऑफ 400 आरपीएम। ठीक है, कितना आरपीएम के लिए ले रहे हैं हम लोग, 400 आरपीएम। पर ध्यान से समझो, कितना आरपीएम के लिए ले रहे हैं हम लोग, 400 आरपीएम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 400 आरपीएम। सो यहाँ पर यदि इक्वेशन वन को मान लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि इसको नॉन लीनियर इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर तुम वैल्यू को पुट कर लिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया, क्योंकि एक क्वेश्चन में देखो तुम्हारा जो दिया हुआ है 70 एम्पियर डीसी सीरीज मोटर, क्वेश्चन जो रेटेड दिया हुआ, रेटेड, क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ो, रेटेड, रेटेड कितना दिया हुआ है, देखो देखो क्वेश्चन में, देखो शुरुआत में कितना दिया हुआ है, 70 एम्पियर। हम लोग का मोटर का रेटिंग कितना है, 70 टू एम्पियर। 220 वोल्ट। तो हम लोग जो टॉर्क निकालेंगे, वो बेसिकली मेरा फोकस रहेगा कि रेटेड जो आएगा उस वैल्यू पे निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो है कि सिंपल 70 एम्पियर को मान के चल रहे हैं, जो रेटेड वैल्यू है, जो हम लोग टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रेटेड वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेटेड वैल्यू का करंट को पुट करके हम लोग जो है कि ईएमएफ को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो टॉर्क निकालना है, वो हम लोग का उस वैल्यू का ईएमएफ में हम लोग निकालेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, इसमें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बात समझ में आया। और एक्चुअली हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में 70 एम्पियर 202 वोल्ट, 202 वोल्ट, 400 आरपीएम। ध्यान से, हमको लग रहा कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो अब इसमें कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, यदि मेरे पास एक रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और तुम्हारे पास 70 एम्पियर है, तो मेरे पास इसको फाइंड आउट करने के लिए, इस ईएमएफ इसको सॉल्व करने के लिए हम यही करेंगे कि मेरे पास जो रेटेड वैल्यू का करंट है उसको पुट करके हम इसका बैक ईएमएफ को निकालेंगे, और वही ना करेंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो एज्यूम करेंगे उसी चीज को ना, जो एक आइडियल कंडीशन होगा। हम क्यों करेंगे उसका जो 10 एम्पियर 2 एम्पियर में, हम तो उसी स्पीड पे ही, उसी करंट, उसी लोड पे ही तो चलाएंगे ना, यहाँ पर हमको टॉर्क मिले परफेक्ट। बात समझ में आया। जब मेरे पास एक मोटर का रेटिंग दिया हुआ है 70 एम्पियर, तो 70 एम्पियर पे ही हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, आया बात समझ में, 70 एम्पियर पूरी पे तरह चेक। हाँ नहीं समझ में आ रहा है सर ये, देखो तो कैसे 70, करके। नहीं नहीं, हम हमको यहाँ पर कुछ समझना ही नहीं है। देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन 0.12 आई है, इतना इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यदि निकालना चाहेंगे ई का वैल्यू, तो तुम्हारे पास एक अननोन क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, आई है ना, यस सर। आइए, तो हम आइए निकाल लेंगे 70 एम्पियर के लिए, क्योंकि हम लोग को फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क।
torque for a speed of 400 rpm and duty ratio of 0.65, सिंपल सवाल 0.65, ठीक है 0.65। तो 0.65 तो हम लोग ठीक है, यहाँ पर तो जो वोल्टेज है उसका 0.6 डेल डेल से कंट्रोल कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक अननोन हो गया, आईए आईए का वैल्यू हम ले लेंगे 70 डीसी सीरीज मोटर के लिए। मतलब ये ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आईए का वैल्यू को एक स्टैंडर्ड 70 मान के हम लोग चल रहे हैं। तो फिक्स 70 कैसे हो गया सर उसमें, मतलब जैसे 70 ही कैसे फिक्स करिए, मतलब 60 भी मतलब उसमें था टेबल में से, तो कैसे कैसे मतलब नहीं 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 समझ हम में। नहीं हम एक रेटेड मान के चल रहे हैं ना, हम इसको रेटेड के लिए हाँ। निकाल रहे हैं टॉर्क को। ठीक है, मेरा जो रेटेड टॉर्क है, रेटेड एमपी का मोटर चल रहा है, तो हम उसी को मानेंगे ना जो मोटर का रेटिंग होता है। तुम्हारे पास कोई एक मोटर है, तुम सोचो तुम्हारे सामने एक लैब में कोई मोटर रख दिया, ठीक है। अब तो तुमको यदि कोई पूछे कि भाई इसका टॉर्क निकालो, तो तुम क्या करोगे? तुम तो यही ना करोगे कि उसका जो ठीक है उसका हमको कुछ पता नहीं है, तो उसका रेटेड करंट पे हम टॉर्क निकालेंगे। तो हम भी वही ट्राई करेंगे, हम भी तो वही ट्राई करेंगे ना, हम क्यों लेस वैल्यू पे निकालेंगे? मेरा स्टैंडर्ड टॉर्क निकलेगा उसी पे ना, रेटेड टॉर्क, हम वही करेंगे ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तुम्हारे पास कोई मोटर रख दिया, तो तुम नेम प्लेट पे चेक करोगे ना, तुम नेम प्लेट में चेक करोगे ना कि ये ठीक है, ये 5 एम्पियर का मोटर है, तो तुम उसी पे चेक करोगे वैल्यू को। तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहेगा? 5 एम्पियर पे ही ना रेटेड टॉर्क में चेक करोगे, रेटेड करंट पे। तो बस यही चीज है यहाँ पर, एज्यूम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि 70 एम्पियर पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे मैंने निकाल लिया। क्योंकि मेरे पास तो कुछ उपाय है नहीं ना, यहाँ पर और कहीं से तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्यों दूसरा वैल्यू पे निकालेंगे? हम ट्राई करेंगे 70 एम्पियर पे ही, जो मेरे पास दिया हुआ है 70 एम्पियर डीसी सीरीज मोटर। तो क्यों हम 50 एम्पियर और 40 एम्पियर में चेक करेंगे? आया बस समझ में? ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। अब तुम्हारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो तुम अंदाजा क्यों इसमें करोगे? तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसी पे करेंगे, दिया हुआ 70 एम्पियर पे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसी क्वेश्चन पे यदि हम ये निकालने के लिए कहें तुम लोग को, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन पे देखो ध्यान, मोटर का रेटिंग सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में मतलब जो 220 वोल्ट 70 एम्पियर जो मोटर है ना, तो उसी पे ही यदि हम लोग सेम चीज पे कर देंगे कि देखो अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं फॉर द सेम रेटिंग मशीन, ठीक है। मोटर, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मोटर को, क्वेश्चन, ठीक है, मोटर इज नाउ कंट्रोल्ड in regenerative braking by a chopper with a source voltage of 220 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कैलकुलेट, राइट डाउन द क्वेश्चन, कैलकुलेट मोटर स्पीड फॉर ए ड्यूटी रेशियो of 0.5 and motor braking torque equal to the rated motor torque। दूसरा नंबर पे देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम allowable मोटर स्पीड, निकालो निकालो, और वो लोग फाइंड आउट करना शुरू कर दो। मोटर सेम मोटर है, 220 वोल्ट जो पहला क्वेश्चन था उसी का। कैलकुलेट द मैक्सिमम अलाउबल मोटर स्पीड फॉर ए मैक्सिमम परमिसिबल करंट ऑफ 70 एम्पियर, ठीक है। 70 एम्पियर क्वेश्चन, ठीक है, 70 एम्पियर है, और क्या है? मैक्सिमम
परमिसिबल ड्यूटी रेशियो, ड्यूटी रेशियो इज कितना है 0.95। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करो बनाने का। तो what resistance must be inserted in armature circuit for the drive to run at 1000 rpm without exceeding armature current beyond 70 एम्पियर। देखो ध्यान से, है ना, कॉन्सेप्ट का समझना। बियॉन्ड द ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर हैज ए रेंज from 0.05 to 0.95। तुम लोग बनाते चलो वन बाई वन करके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। टू व्हाट एक्सटेंट the number of turns in field winding should be reduced to run the motor at 1000 rpm without exceeding the armature current beyond 70 एम्पियर। सो देखो, इसको वन बाय वन करके लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। सेम प्रोसेस वही बनाना है जो अभी बताया गया, फॉर्मूला भी वही सब यूज होगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। सो वन बाय वन करके बताने का कोशिश करो कि क्या आंसर आ रहा है, थोड़ा बताओ इसका आंसर सब क्या आ रहा है, ठीक है। एक नंबर बन गया सर। क्या आंसर है बताते जाओ, मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, सबको जवाब देना है। क्या आंसर आया बताओ। 351 आ रहा है सर उसका स्पीड। 351 आया ना, तो देख लेते हैं। IA इजिकल टू 70 एम्पियर है रेटेड में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। तो E1 इजिकल टू यदि निकालते हैं तो V प्लस IA आ रहे हैं, ठीक ना। तो V के मतलब डेल V प्लस IA1 RA, और डेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन 0.5 इंटू 220 प्लस IA का वैल्यू कितना है 70, मोटर स्पीड इतने ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू द रेटेड मोटर, रेटेड टॉर्क मतलब 70 एम्पियर है ना, करंट तो 70 होगा रेटेड के लिए, एंड RA इज कितना है, RA का वैल्यू तो क्वेश्चन शुरू वाला ही क्वेश्चन का है, ठीक है, 0.12 तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखो। सो E1 इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जब E1 यहाँ से निकल जाएगा, E1 का वैल्यू कितना आ गया 118.4 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट मोटर स्पीड, है ना। तो मोटर स्पीड तो फिर से वही कहानी है, मोटर स्पीड तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का 70 किस पे आ रहा है, उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे दिया हुआ है ना 202 पे है ना, मैं इसका बात कर रहा हूँ, मैं इसका बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ मैं। देखो 70 पे क्या है 202 है कि नहीं, मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से जो रिलेशन सिंपल हम निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड मोटर स्पीड निकल जाएगा, N1 इजिकल टू कितना आया है यहाँ पर 11118.4 और डिवाइडेड बाई 202, और कितना है हम लोग का स्पीड के लिए कहा गया ये 600 आरपीएम, 600 पे। सो यहाँ से हम लोग N1 निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है तुम्हारा 351.7 आरपीएम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या, कैलकुलेट मैक्सिमम अलाउएबल मोटर स्पीड फॉर ए मैक्सिमम परमिसिबल करंट ऑफ 70 एम्पीयर एंड मैक्सिमम परमिसिबल ड्यूटी रेशियो ऑफ 0.95। तो ये सेकंड कोशिश करो, सेकंड वाला बनाने की कोशिश करो। सेकंड का आंसर कितना आ रहा है देखो, चेक करो। सेकंड नंबर में यहाँ पर हम लोग का जो गिवन में क्या है, एट 70 एम्पियर पे जो डेल मैक्सिमम जो हम लोग का दिया हुआ है वो 0.95 है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सेम टू सेम, E2 निकाल लेंगे नेक्स्ट केस के लिए, E2 सो डेल V तो 0.95 एंड 220 ओके एंड प्लस 70 इंटू 0.12, यही तो करना है। तो यहाँ से सॉल्व करो, E2 को वैल्यू आ जाएगा, सेम टू सेम करते हैं फिर हम लोग यहाँ पर, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस इजी क्वेश्चन होगा। तो ये तुम्हारा E2 इजिकल टू 217.4 वोल्ट एंड नाउ कितना है यहाँ पर, फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम अलाउएबल मोटर स्पीड फॉर ए मैक्सिमम परमिसिबल करंट ऑफ 70 एम्पीयर। सेम चीज, सेम चीज, 70 एम्पीयर रेटेड ही हो तो गया। तो फॉर IA इजिकल टू 70 एम्पीयर, N इजिकल टू 600 आरपीएम, तो E इजिकल टू गिवन दिया हुआ सेम टू सेम 202 वोल्ट है ना। मैग्नेटाइजेशन कम से तो पता चल ही रहा है। तो नाउ फाइंड आउट N2 इजिकल टू, तो यहाँ पर क्या जाएगा 217.4 and divided by 202 into 600. So let's calculate this one, 217.4, 202 into 600. So this one 336.67 volt. Clear? Okay. So 1 and 2 solve हो गया, 3 and 4. So next join करो फिर से। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में क्वेश्चन है व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी इंसर्टेड इन आर्मेचर सर्किट फॉर द ड्राइव टू रन एट 1000 आरपीएम विदाउट एक्सीडिंग आर्मेचर करंट बियॉन्ड 70 एम्पियर, beyond 70 ampere. The duty ratio of chopper has a range from 0.05 to 0.95. बनाने का कोशिश करो, मुझे लग रहा बन जाना चाहिए क्वेश्चन भी। और इसमें क्या क्या है हम लोगों का, IA इज इक्वल टू 70 एम्पियर, वैसे बियॉन्ड 70 एम्पियर विदाउट एक्सीडिंग, बियॉन्ड 70 एम्पियर, ठीक है। और स्पीड तीसरा केस है, देन 3 मान लेते हैं 1000 आरपीएम। तो फॉर्मूला में हम लोग को क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट, रेजिस्टेंस कितना इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल रेजिस्टेंस हम लोग कितना था क्वेश्चन पे 0.12 ओम, कंबाइंड रेजिस्टेंस आर्मेचर फील्ड 0.12 ओम, एक्चुअल में हम लोग का फाइनली क्या था 0.12 ओम। सो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ में मान लेते हैं कि R रेजिस्टेंस पे इंसर्ट कर रहे हैं। सो ओके, सबसे पहले तो हम इसमें वो निकाल लेते हैं, N3 है, IA है। सो यहाँ पर 70 एम्पियर के लिए हम लोग का 70 एम्पियर के लिए कितना वोल्ट था, 202 वोल्ट ना, 202 वोल्ट, ओके। और ठीक है 202 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग बैक मैप निकाल लेते हैं, E3 इजिकल टू 1000 के लिए है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाय फाइनली क्या था 600 और 202, यही है ना 202। टेबल इसमें देखो जो क्वेश्चन पे है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लो, ये हम लोग का निकल गया 336.67 वोल्ट, ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला हम लोग का बताइए, इजिकल टू V प्लस IA R है, हम लोग का है ना पता, E3 इजिकल टू V प्लस IA R है। सो V मीन्स यहाँ पर डेल V प्लस जो भी IA R, R के जगह में तो क्या हो जाएगा R
प्लस जो 0.12 यही है, हम लोग इंसर्ट कर दिए। एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि आर को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। सो नाउ लेट्स फाइंड दिस वन सिंपल। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकल जाएगा आर प्लस 0.12 E3 माइनस वैल्यू भी ठीक है divided by IA. So here E3 that is what? E3 is 336.67 minus that is maximum permissible voltage 0.95 and voltage is 2 to 0 and IA is that is 70. R plus 0.12 इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा चेक करो तो, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेट करो, और फाइनली R का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट दिस वन। सर इसमें रेंज के हिसाब से आएगा ना सर, काहे कि एक तो 0.05 से लेकर के 0.95 तक दिया है, तो आर का वैल्यू रेंज में होगा सर। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं ना कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी इंसर्टेड इन इतना विदाउट एक्सीडिंग आर्मेचर करंट बियॉन्ड 70, द DTU स्ट्रक्चर हैज अ रेंज 0.05 0.95, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम जो रेंज है उसमें निकाल रहे हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो ऐड कर रहे हैं वो मैक्सिमम रेंज के लिए, रेंज तो दिया हुआ 0.0 0.95, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल हम लोग का बियॉन्ड 70 विदाउट एक्सीडिंग आर्मेचर करंट बियॉन्ड 70 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग फाइनल जो है रेटेड मान लिए हैं 70 को ना, तो रेटेड मान लिए हैं तो हम लोग फिर नीचे लेवल का निकालने की क्या जरूरत है, हम लोग सीधा 0.95 के लिए निकाल लेंगे। क्वेश्चन में तो साफ लिखा हुआ है कि हम लोग फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो रेटेड के लिए निकालेंगे। उसके लिए रेटेड के लिए तो हम लोग 70 के लिए निकालेंगे, सारा केस 70 के लिए, रेटेड 70 एम्पियर। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर आर का वैल्यू देखो, चेक करो कितना आ रहा है। तो ये 336 0.95 इंटू 220 209 माइनस 336.67, so R plus 0.12, now this is equal to divided by 70, 1.82, so R is equal to 0.12, कितना है R is equal to 1.7 हमारा है ना, कितना है 1.7 ही तो आ रहा है, ठीक है। Plus 1.7, okay, so R will be 1.7 ohm, okay, so R is equal to 1.7 आ गया यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So now come to the last question, fourth number. So in the last question, find out the last question. To what extent the number of turns in the field winding should be reduced? Should be reduced. To what extent the number of turns in field winding should be reduced, okay, to run the motor at 1000 RPM without exceeding the armature current beyond 70 ampere. तो इसको तुम लोग फाइंड आउट करो, ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लो, सेम टू सेम ये ई निकाल लो और दोनों का रेशियो निकाल दो 70 एम्पियर के केस में, ठीक है, सिंपल है, निकालो इसको। E3 जैसे निकाले हो ना तो E4 निकालो ना, E4 निकाल लो, E4 निकालो, जो हम लोग का रेंज दिया टेल भी, मतलब क्या क्या दिया हुआ देखो, 0.95 इंटू 220 प्लस IAR, तो 70 इंटू 0.12, तो इसको सॉल्व करो, E4 का वैल्यू आ जाएगा। अब ये 1000 RPM देखो कहाँ क्वेश्चन पे, to what extent the number of turns in the field winding should be reduced to run the motor at 1000 RPM without exceeding the armature current beyond 70 ampere, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो E4 निकल जाएगा, E4 का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, E4 का वैल्यू
सो E4 का वैल्यू जो है 217.4 वोल्ट आ गया। सो हम लोग का बैक ईएमएफ जो है डेवलप्ड 1000 आरपीएम और 600 आरपीएम के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो क्वेश्चन कहा गया है, तो मान लो उसको कुछ भी बैक ईएमएफ ई है, तो 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 217.4, तो यहाँ से हम लोग का ये बैक ईएमएफ निकल जाएगा 130.600.44। एक बैक ईएमएफ हम लोग का निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड आर रिड्यूस क्या करते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए, जो एक्चुअल 70 एम्पियर में हम लोग का जो आया है, 70 एम्पियर में कितना है देखो टेबल पे 202 है, 202 है। तो फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को, सिंपल क्वेश्चन में कहा गया कि फ्रैक्शन कितना रिड्यूस हो रहा है, फ्रैक्शन टू इच नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड आर रिड्यूस्ड। तो जो हम लोग का ईएमएफ कितना निकला है 130, एक मिनट 130.44, और जो एक्चुअल हम लोग का 70 एम्पीयर का कैरेक्टरिस्टिक्स में आया कितना था 202। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये 130.44 डिवाइडेड बाई 202 दैट इज 0.646। ये हम लोग का रिड्यूस्ड वैल्यू फ्रैक्शन जो आ रहा है 0.646 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मोटर का जो भी सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, बस चॉपर कहने का मतलब आ जाता है क्या, ड्यूटी रेशियो कंट्रोल, ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल। बस सारा क्वेश्चन तो बेसिक जो मोटर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर का जानते हो, ईएमएफ बैक ईएमएफ, तो सारा कॉन्सेप्ट वही है। बस हम लोग जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का बात कर देते हैं तो उसमें जो हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज, चॉपर और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, simply they are firing angle, simply their duty cycle, we have to control all the things. So numerical problems are very similar to the motor, just only the duty cycles ratio जो given है उसको खाली हम लोग को समझेंगे, अदरवाइज कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चॉपर जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, देखिए सारे चॉपर के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो गया, और जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी इसमें हम लोग को बताना है, ठीक है। ओके, ओके भाई, ठीक है, यहीं तक रखते हैं।